Okay, students, today we will start chapter number 12, global warming. Global warming. I hope everybody have heard the term global warming. And in this chapter, global warming, we are going to study about global warming. Global warming यहाँ पे चेतावनी दी गई है, ठीक है? So we are going to study about global warming and its reason and the impact. So let's start from the first paragraph. Climate change or global warming is the greatest environmental threat our planet is facing today. बच्चों, आज के समय में पृथ्वी के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो है ग्लोबल वार्मिंग. It is the gradual process of heating up of the earth environment. There are many reasons for global warming. The most important agents are the greenhouse gases. These gases are created by both natural processes and human activities. So global warming का अर्थ है अर्थ के environment का धीरे धीरे गर्म होना. So there are many reasons for global warming. The most important agents are greenhouse gases. These gases created by both natural processes and human activity. Okay. Next one is the primary greenhouse gases in Earth atmosphere are water vapor, carbon dioxide, methane and ozone. These gases are responsible for trapping heat in the atmosphere. They are the reason why Earth is warm and habitable for humans. But if these gases exceed the normal level, it can make the atmosphere too warm for humans to live in. The important greenhouse gases are कौन सी है? वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड ओजोन. इन्हीं गैसों के कारण क्या होता है? इन्हीं गैसों के कारण हम इंसान जो है पृथ्वी पर रहने योग्य, मतलब इन्हीं गैसों के कारण पृथ्वी इंसानों के रहने योग्य बन पाई है, क्योंकि यह सूर्य की किरणों को पृथ्वी में रोककर एटमॉस्फेयर को गर्म रखता है. ओके, पर जब ये गैसेस जो होती है नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाती हैं तो यह पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को अत्यधिक गर्म कर देती है, जिससे कि यह पृथ्वी मानवों के रहने लायक नहीं रहेगी. ओके, नेक्स्ट वन इज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इट्स ग्रोइंग नीड्स कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज. Forests are being cleared to create living spaces for human beings. Trees remove carbon dioxide from the atmosphere while they produce oxygen and reduces the amount of greenhouse gases. Deforestation, the large-scale cutting of trees, has led to the rise in the levels of greenhouse gases. Okay. Increasing population, बढ़ती जनसंख्या और उनकी बढ़ती ज़रूरतों के कारण क्लाइमेट क्या हो रहा है? अब चेंज हो रहा है. अब इंसानों के रहने के लिए क्या हो रहा है? जंगल को काटे जा रहे हैं, ठीक है. एज यू नो, ट्रीज एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन विच रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. डिफॉरेस्टेशन के कारण ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है. ओके, फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस पॉइजनस गैसेस दैट डिस्ट्रॉय द प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर. द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ बाय स्टॉपिंग हार्मफुल sun rays from reaching its surface. फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज से निकलने वाली जहरीली गैसों के कारण क्या हो रहा है? ओजोन लेयर का क्षरण हो रहा है, मतलब कि ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो रहा है. ओजोन लेयर सूर्य से आने वाली हार्मफुल रेस को बाहर ही रोक कर रखता है, अर्थ सरफेस में आने नहीं देता है. ओके, however, due to a depleted ozone layer, ultraviolet rays from the sun are now able to enter earth atmosphere. ओजोन लेयर के क्षरण के कारण, ठीक है, ओजोन लेयर के क्षरण के कारण सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज भी अब अर्थ पर आने लगी हैं. ओके, व्हीकल्स नीड फॉसिल फ्यूल टू रन and burning of such fuel increase carbon dioxide.
Hence, our lifestyle driven by technology is making the earth less habitable. गाड़ियों से निकलने वाले धुओं के कारण कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर में क्या हो रही है, बढ़ रही है, और हमारे लाइफस्टाइल में अत्यधिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के कारण हम अर्थ को रहने लायक नहीं छोड़ रहे हैं. There are many dangers of global warming. The ice caps and glaciers are melting fast due to the rising temperature. As a result, the sea level is rising at a dangerous rate. If this continues, large section of Earth's landmass will soon be underwater. It is also increasing the duration of summers and decreasing winters. This unnatural change in season is dangerous for humans as well as animals. ग्लोबल वार्मिंग के वैसे तो बहुत खतरे हैं, जैसे कि टेम्परेचर के बढ़ जाने के कारण ग्लेशियर का पिघलना. ग्लेशियर के पिघलने से पानी का लेवल बढ़ जाएगा और समुद्र तटीय क्षेत्र जो है डूब जाएंगे. तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण गर्मी के मौसम क्या हो रहे हैं, अब बढ़ते जा रहे हैं और ठंडी के मौसम छोटे होते जा रहे हैं. मौसम में यह अप्राकृतिक बदलाव मानव एवं जानवरों दोनों के लिए ही खतरनाक है. नाउ climate change is also responsible for the frequent occurrence of natural calamities like flood and drought. Global warming is already leading to problems of water availability. A warmer earth may face severe water crisis in some parts and flooding in other parts. Also, unpredictable weather will make agriculture difficult. मौसम परिवर्तन ही बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के जिम्मेदार हैं. ग्लोबल वार्मिंग के कारण पानी की समस्या होने लगी है. अर्थ के गर्म होने के कारण वर्ल्ड के कई पार्ट्स में वाटर क्राइसिस और कई पार्ट्स में बाढ़ का खतरा बना रहता है. ठीक है, और अनप्रिडिक्टेबल वेदर के कारण खेती करना जो है मुश्किल हो जाएगा. However, the problem of global warming can be controlled by minimizing the emission of greenhouse gases. We can all play small roles in saving Mother Earth from the harmful effects of global warming. ग्लोबल वार्मिंग की समस्या ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन के कंट्रोल से खत्म हो सकती है. ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन के कंट्रोल से खत्म की जा सकती है. हम सब भी स्मॉल प्ले रोल करके मीन्स अपना योगदान दे करके मदर अर्थ मीन्स धरती माता को ग्लोबल वार्मिंग के हार्मफुल इफेक्ट से बचा सकते हैं. द सिंपलेस्ट सॉल्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग इज एफॉरेस्टेशन. ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का सबसे साधारण उपाय है वृक्षारोपण, एफॉरेस्टेशन. Just by planting trees and increasing the forest cover, we can undo the damage done to our planet. As the number of trees grows, it will reduce greenhouse gases and increase the oxygen level in the atmosphere. पेड़ों की संख्या और फॉरेस्ट की संख्या बढ़ाकर हमने जो पृथ्वी को नुकसान पहुंचाया उसकी भरपाई कर पाएंगे. जैसे जैसे वृक्षों की संख्या बढ़ती जाएगी, ग्रीन हाउस गैसेस रिड्यूस होती जाएंगी और ऑक्सीजन का लेवल एटमॉस्फेयर में क्या होगा, बढ़ता जाएगा. वी शुड स्टॉप वेस्टिंग पेपर. ट्रीज आर फेल्ड एवरी डे टू प्रोड्यूस पेपर. वी कैन सेव पेपर बाय कीपिंग डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट एंड बाय नॉट प्रिंटिंग ईमेल्स. हमें पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए. पेपर बनाने के लिए रोज पेड़ काटे जाते हैं. हम सॉफ्ट कॉपी मीन्स पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड, ये सब में डॉक्यूमेंट्स को सेव कर पेपर को बचा सकते हैं. स्मॉल स्टेप्स लाइक यूजिंग कारपूल्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल. वी कैन शेयर अवर कार्स वाइल गोइंग टू वर्क, स्कूल और वाइल ट्रैवलिंग. कारपूल्स एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल जैसे छोटे छोटे उपाय भी बड़े ही कारगर है. वी शुड ऑल्सो ट्राई टू लिमिट आवर
uses of electricity, increased use of gadgets also leads to greater carbon emissions. हमें इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग भी सीमित तरीके से करना चाहिए. गैजेट्स का भी इस्तेमाल भी कम करना चाहिए क्योंकि वे भी ऑक्सीजन पैदा करते हैं. ठीक है. With collective efforts, we can reverse the harmful effects of global warming. If the earth get hotter and hotter, where shall we go? हमारे सामूहिक प्रयास से हम ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को कम कर सकते हैं क्योंकि अगर पृथ्वी गर्म और गर्म होती जाएगी तो हम कहाँ जाकर रहेंगे. My dear students, I hope you all understood this lesson. Read this lesson properly and